Students, welcome back to studies. Now today we are with the new chapter, class 7th, geography chapter 1. Title is environment. Well, before we start this chapter, we have an example of related to the topic. चलिए उसको पहले हम देखते हैं. As the chapter begins, here some theory is given. There you can see that there is a child after a long vacation named Ravi. Is coming back to school. उसने क्या नोटिस किया, उसने देखा कि स्कूल के पास में जो प्ले ग्राउंड है जहाँ वो खेलते थे वो अब जो है वहाँ पर डिग कर दिया गया है और वहाँ पर एक बड़ी ह्यूज बिल्डिंग बन रही है. अब बिकॉज इट वाज द ओनली ग्राउंड एंड वेयर लाइक एवरीबडी वाज प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स एंड इंक्लूडिंग रवि ऑल्सो, तो वो बहुत सैड हो गया, वो बहुत दुखी हो गया और इवन ही वाज ऑलमोस्ट क्राई कि अब वो कहाँ पर जो है वो खेलेगा. वो मिस कर रहा था अपने प्लेग्राउंड की ब्यूटी एंड ऑल द थिंग्स. स्कूल में गया तो ही शेयर्ड इट विद द फ्रेंड्स एज वेल एज टू द टीचर्स एंड the principal also, and they all felt so bad, and the principal replied in a way that see how our environment is changing. Well, this was now the question which has been observed by Ravi's mind ki environment. Now what is environment? He wanted to know exactly what it means. So there what now the questioning start. अब सोचना शुरू किया. Then he asked ki what is environment? He asked to the teacher. The teacher replied, whatever you see in your surrounding is called environment. मीन्स आप जहाँ रहते हैं और आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सबको आप कैटेगराइज करते हैं, टाइटल देते हैं एज एनवायरनमेंट. सो रवि ने क्या सोचा? रवि ने सोचा कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, everything, and your friends also, they all are environment. Well, definitely the teacher has replied, yes, that is environment. But objects are created by nature like mountain, river, trees and other, and different things apart from the natural material which has not been created by not just the nature, but like people, your friends, and your man-made material like chair, table, blackboard and screen, everything. These are different. These are also the part of environment, but their creation is different. So now this become a task for them. Now work in pair. दिस वाज यू कैन कॉल इट असाइनमेंट. दे दिया कि आप असाइनमेंट पे काम करिए और आप देखिए कि आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बिलोंग्स करती हैं, वो इंक्लूड करते हैं आप उसमें, और उनका नेचर क्या है. तो इसके लिए जो है यहाँ पर ये टीम तैयार हुई बच्चों की. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, they all were excited to make the list, and then they started creating it. But with that they got one question, that why is our environment changing. कि अगर ऐसा है जैसे पहले ऊपर आपने देखा एक प्लेग्राउंड हुआ करता, अभी वहाँ बिल्डिंग बन रही है, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. तो एकदम एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि फिर ये चेंजेस क्यों होते हैं एनवायरनमेंट में जो हमारे आसपास है. तो इसका जो है आपके पास यहाँ पर जो है दिया हुआ है. टीचर ने रिप्लाई जो दिया इनको कि इंक्रीजिंग आपकी जो नीड्स होती हैं, आपका जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो जैसे जैसे बढ़ती हैं, देन वी स्टार्ट मॉडिफाइंग आवर एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग एंड वी डू द नीडफुल चेंजेस. Like as if there is a overpopulation, we try to make the multi-story building where maximum people can actually live. And like you need a shop in your area, then shop would be constructed, markets would be increased. So this is how these things actually find the changes in the surrounding areas. Now move back to, this is an example of the children where they are trying to ask the questions about their surrounding. Now if you look at this blue box on the right hand side which is given in your chapter, environment. What is environment? Environment is our basic life support system. It provides air we breathe, the water we drink, the food we eat,
एंड लैंड वी लिव। तो बेसिकली एनवायरनमेंट को जब आप डिफाइन करेंगे तो यू जस्ट मेंशन एवरीथिंग देयर। तो एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली दैट सराउंडिंग विच सपोर्ट्स योर लाइफ, आप जिसमें अपना जीवन को जीते हैं। विद वॉट? विद वाटर, एयर, the land, the house where you live. So basically these all things are included into that. Then human beings do the modification into it as according to their needs, like as car fumes pollute the air. We means our deeds, इंसान के जो काम होते हैं या उसका जो नीड्स होती हैं वो मॉडिफिकेशन करती हैं। जैसे वी नीड व्हीकल, राइट, वी नीड व्हीकल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो वो पॉल्यूशन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। तो वो हमारी नीड ट्रांसपोर्टेशन की थी, पर उसका इफ़ेक्ट जो है आप देखोगे तो वो पॉल्यूशन यानी कि एनवायरनमेंट चेंज के अंदर वो आपको नज़र आएगा। देन दिस इज़ हाउ दे आर बीन गिवन। Then moving further, human beings makes cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human being modify the natural environment. So this is what we have, that in our surrounding we have the environment, and we do the needful changes as according to our needs. Now if we want to study the environment, components of environment, then we will find there are components which we can show by this diagram. In the center this is components of environment, means environment में क्या क्या चीज़ें include होती हैं। अब environment में बेटा you have seen there were different categories of the things, which are some are natural, some are man-made, some are related to human itself only, that is called human resource. Now let's see one by one the different corners, these three aspects of the components of the environment. Well, now in this one, the first component if we talk about, then that is natural. नेचुरल मीन्स ये आपका इसमें क्रिएशन में इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, नेचुरली आपको ये जो है फाइंड आउट होता है, आपको प्रेजेंट मिलता है आपको बाय द मदर नेचर। भगवान ने आपको ऐसे ही ये सारी चीज़ें फ्री में दी हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल फॉर लाइक वाटर, एयर विच क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर, देन लैंड दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर, living things that is biosphere. Already you have done all these three spheres in class 6th also, where you have the domains of the earth. Water is creating hydrosphere, air is creating atmosphere, land is for lithosphere, and when these three, above three, air, water and land, merge up together, they create a new sphere that is called living things के लिए बेस्ट जो है आपका बायोस्फेयर, वेयर द लाइफ इज़ पॉसिबल। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ओनली वाटर, एयर एंड लैंड, अकेले इसमें पूरी तरह से लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट व्हेन these three joins together, then the possibility of life is there. So this is what we call the natural components of environment. Now further on, if we talk about the human made environment is consisting all the things which are created by human itself, means human has created it. What are these? These are buildings, these are park, these are bridges, roads, then you have some infrastructure like the monuments, इंडस्ट्रीज़. सो दीज आर मेड बाय ह्यूमन. हम लोगों ने इन सब चीज़ों को बनाया है. ये नेचुरली नहीं है कि कहीं बिल्डिंग आपको मिल गई खड़ी और आप रहने लग गए. ये बिल्डिंग्स हमने बनाई, यानी इंसान ने इनको क्रिएट किया. तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स, एंड दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ environment. Now the third one, human itself. Well, human itself is also an important component of the environment. अब human itself में क्या आएगा? Human relations, ह्यूमन इमोशंस, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे थॉट्स,
ये सब चीज़ें, जैसे कंट्रीज आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड हैज़ क्रिएटेड माउंटेन, रिवर, बट जो हमारा बॉर्डर है, अलग अलग कंट्रीज़ का जो बॉर्डर हम पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं, वो तो हमने क्रिएट किया है, और ये बॉर्डर्स चेंज भी होते रहते हैं। जैसे पहले चाइना के पास तिब्बत नहीं था, पर जब तिब्बत को उसने जो है वो कंट्रोल किया, तो तिब्बत भी चाइना के मैप के अंदर इंक्लूड हो गया। तो ये चेंज है। सो दिस इज़ हाउ द बॉर्डर्स कैन बी चेंज्ड। तो ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करेगा, क्योंकि ह्यूमन की सोच से बना है। ओके, देन दिस इज़ इंडिविजुअल, यू योर सेल्फ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके एनवायरनमेंट में देखो, आपके अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, इंसान जो है इंसान के साथ रहते हैं, जैसे जंगल में जानवर जानवरों के साथ रहते हैं। तो इस तरह से ये आपका एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। इंसान है तो डेफिनेटली ह्यूमन इज़ लिविंग विद द फैमिली, then family, many family create the community, then your religion is also human created, then you have the education, yes, education is what this is knowledge, then economic, yes, the market, currency, money, all these things, trading, और political situations यानी कि borders, आपकी क्रिएशन। जैसे आपके स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर आप स्टेट्स देखो तो वो बॉर्डर चेंज होते हैं आपके। आप देखो पहले कितने कम स्टेट्स थे, स्टार्टेड विद द 14 स्टेट्स इन इंडिया, नाउ 28 स्टेट्स वी आर हैविंग। तो ये चेंजेस हैं, तो विच आर ह्यूमन इज़ क्रिएटेड इन इट्स सराउंडिंग। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ गए। नेक्स्ट फर्दर ऑन, इफ़ वी नाउ फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन, अभी आपने जो पीछे पढ़ा था कन्वर्सेशन, जिसमें कि वो एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे कि कुछ नेचुरल हैं, कुछ ह्यूमन मेड हैं, जिसमें बच्चों को जो है अलग अलग उनका एनवायरनमेंट डिफ़ाइन करना था। तो उसके बाद उनका आता है, फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब ये जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, इसमें बेटा दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग, एक होते हैं नॉन लिविंग। इनको इफ़ वी कैटेगराइज देम साइंटिफिकली एंड वांट टू एक्सप्लोर देम, स्टडी देम, देन व्हाट डू you categorize them into these two categories. One is called biotic, other one called abiotic. When we are saying biotic is clearly, well, when we say biotic, then what do you have? It is while the natural environment refers to biotic and abiotic existing on the earth. When we say biotic means the plants, means the things which are having life. So what are having life? Plants are having life, animals are having life, human itself is having life. And the other hand you have the abiotic means the things which are having no life, means non-living things like water, air, soil, land, all these things, but these are essential parts of your environment. Basically this is how we categorize our environment into biotic and abiotic category. Now move on further with the natural environment. Let's see more about it. Well, there is a word origin. What is environment is given here, this one. Now the next one we have the word origin. Word origin, as far as it is concerned, it is here. This is about the environment. French word environner, meaning neighborhood. So environment word itself is saying I am in your neighborhood, I am in your surrounding. Now move on further. Natural environment, what it comprises, let's see in the explanatory part. Already we have seen the components of the environment in the diagram, but let's see in a theoretical part also what it consists. Land, water, plant, animal comprise natural environment. Natural environment में आपका land, water, air, plant, animal ये सब include होता है, क्योंकि इन सब से ही आपका सराउंडिंग बन रहा है। इसके साथ में आपके कुछ डोमेन्स हैं, मेन डोमेन्स हैं, जिनको आप इसमें लर्न करेंगे। एंड दीज डोमेन्स कंसिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द लिथोस्फेयर. Well, lithosphere is there, the first domain you can see, and in that one you are having the solid crust.
the solid crust of the earth, the uppermost layer, and it is very thin layer. It is irregular with the surface. इरेगुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, ओशन फ्लोर, ये सब चीज़ें हैं. और आपका लिथोस्फीयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज आप वी आर ह्यूमन, वी नीड लैंड टू लिव. Without land we cannot live. So basically the lithosphere is consisting all the land part. Well, when we say lithosphere, it is consisting of water body also, but that we are categorizing differently. हम उसको हाइड्रोस्फीयर में अलग से रख रहे हैं. तो यहाँ पर हम सिर्फ वो एरिया की बात करेंगे जहाँ पे माउंटेन, प्लेन या प्लेटू या वैलीज, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर है जो पानी के नीचे नहीं ऊपर है, यानी सी लेवल से ऊपर है. Now, lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for agriculture, human settlement, यानी कि घर बने होते हैं हमारे, और ये हमारे मिनरल्स का भी सोर्स है. यानी हमें जो आयरन, बॉक्साइट, आपका एल्यूमिनियम एंड मिनरल्स, आपके बाकी मिनरल्स है, गोल्ड, सिल्वर, मतलब जितना भी आपका ये सब हमारा मिनरल्स हमें रिसीव होता है, फॉसिल फ्यूल्स भी, ये आपके मेजरली आपके जो है वो लिथोस्फीयर यानी कि लैंड से रिलेट करते हैं. Now there is one thing is given that this is diagram. This diagram is given. You can see this diagram which is very visible. That in this diagram you can see few things, and these are that atmosphere on the top, blue color. In the topmost it is atmosphere where the air composition is there, and then you have the hydrosphere. Well, the hydrosphere as far as concerned, it is concerned with the water. Then this is lithosphere, atmosphere on the top. Lithosphere is consisting land body, and when these three, where water, air and land all together are present, that creates a new sphere that is called the biosphere. Biosphere is the place where the life is possible. So this is what we have. The second domain of the natural environment is the hydrosphere. Well, hydrosphere consisting all the water bodies. Now water bodies क्या क्या है? River, lake, sea, ocean, ये सारी आपकी water bodies हैं. Then you have the third one, that is atmosphere. Well, in the atmosphere it is talking about the thin layer surrounding the earth. एंड ये थिन लेयर आप क्यों आपकी अर्थ से जुड़ी हुई है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ी हुई है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसको जो है चारों तरफ अर्थ के इसको रिमूव नहीं होने देती, इसके साथ जोड़े रखती है. दिस इज एक्चुअली कंसिडर एज द एटमॉस्फेयर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द unnecessary sun rays which are coming from the sun. harmful sun rays जो आ रही हैं आपकी, अल्ट्रा वायलेट सन रेज जो आ रहे हैं, उनसे हमें बचाता है. बिकॉज इट इज़ अ फिल्ट्रेशन, एक तरह से इसमें ओजोन लेयर होती है जो इसको एब्सॉर्ब कर लेती है. एंड व्हाट एल्स वी हैव द गैसेस, डस्ट, वाटर, and changes in the atmosphere means the weather and the climate. Well, see, आपने देखा होगा देर आर एटमॉस्फेयर में चेंज भी होता है. कैसे? जैसे कि सुबह आपका देखो सनी है, दोपहर को बारिश हो गई, इवनिंग में फिर क्लियर स्काई हो गया, ये आपका वेदर है. और आपका हर साल समर्स आर लॉन्ग एंड विंटर्स आर शॉर्ट, ये क्लाइमेट है. तो डे टू डे लाइफ में जब आपका वेदर चेंज हो रहा है वो एक शॉर्टर पीरियड में है, और क्लाइमेट जो एक लॉन्गर पीरियड में होता है. ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं. एंड इट atmosphere comprises not just the gases but also the changes of the environment where the temperature got changed. यानी टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना भी आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है. देन plant and animal kingdom together makes the biosphere और द लिविंग वर्ल्ड. जितना भी जीवन है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा आपका बायोस्फीयर में आपको मिलेगा. ये बहुत ही एक नैरो जोन है. नैरो जोन इन द सेंस जो आपका लैंड है, लिथोस्फीयर है, उससे ऊपर एयर का सबसे नीचे का जो सेक्शन है, ट्रोपोस्फीयर जो आपकी लेयर है,
Do you remember? Class 6 you had you have already started. There are layers in the atmosphere. ये जो आपकी लेयर सबसे नीचे जो अर्थ के साथ लगी हुई फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर लेयर है, वो उस लेयर में आपका ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बायोस्फीयर में आपको मिलता है, क्योंकि यू गेट वाटर, लैंड एंड ऑक्सीजन टू breathe. Now moving further, there one term comes that is called ecosystem. Well, it is in the left hand side also, it has been given. Let's read that one first. That is given, ecosystem is the system formed by the interaction of all living organism with each and with physical and chemical factors of the environment which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम, बायोस्फीयर जो है, इफ़ यू सी, इसमें क्या होते हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग भी हैं साथ में हमारे। तो हम सब में आपस में एक इंटर रिलेशनशिप है। कैसे? जैसे एनिमल्स ह्यूमंस के काम आते हैं, ह्यूमन एनिमल्स के काम आते हैं। बायोटिक को सपोर्ट करता है, बायोटिक को सपोर्ट करता है। जैसे सॉइल इज़ रिक्वायर्ड, सॉइल हमारे किस लिए, हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, उसके लिए ज़रूरी है। और सॉइल को जो फर्टिलिटी जो मिलती है वो हमारे जो है अलग अलग मेथड से भी मिलती है। तो ऑल दीज थिंग्स लाइक एज जो ट्री है, ट्री और हम पे डिपेंडेंसी क्या है, ट्रीज आर रिलीजिंग द ऑक्सीजन एंड वी आर कंज्यूमिंग इट, बट द कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके ज़िंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वी आर एक्सचेंजिंग, मीन्स वी आर फुलफिलिंग ईच अदर्स नीड्स। हम एक दूसरे को जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी इंटर रिलेशनशिप को, इसी इंटरडिपेंडेंसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। सो हियर at the NCC camp Ravi class was attending, Jessie exclaimed, what a heavy downpour, it reminds me at my home Kerala. ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली। कोकोनट प्लांटेशन का उसको एकदम से याद आ गया और किस तरह से जो अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करने लग गया। उसने केरला का बताया। एक दूसरा बच्चा है हीरा, वो जैसलमेर से है, तो उसने अपने यहाँ के बारे में बताया कि वहाँ पे जो है कीकर मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो हर जगह पे वेजिटेशन अलग है, कहीं कोकोनट उगता है तो कहीं कीकर उगता है। तो कोकोनट जहाँ उगता है वहाँ कोकोनट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स या फिर बाकी चीज़ें हैं वो उसको सपोर्टिव है उसके लिए। जहाँ कीकर उगता है वहाँ कीकर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और मॉइस्चर है, और लोग जो है कीकर का यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एनिमल भी उनसे इंटरलिंक करते हैं। तो इकोसिस्टम इज़ डिफरेंट इन एवरी पार्ट, इन डिफरेंट जोन्स। हीट जोन में देखो, जो टॉरेट जोन होता है गर्म होता है, तो वहाँ पे एनिमल और प्लांट्स का रिलेशनशिप भी अलग हो जाता है। वहाँ पे वूल के कपड़े नहीं पहनते हम लोग। जहाँ पर आपका फ्रिजिड जोन आ गया, वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है तो वहाँ फिश ज़्यादा खाते हैं और वहाँ पे एनिमल भी दूसरे मिलेंगे। फ्रिजिड जोन में एलिफेंट्स तो ना मिलेंगे। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच मेक्स अ difference. Now further on, this has been given a picture. This is a kind of presentation of इकोसिस्टम। एक पॉन्ड है और उसके अंदर इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे देखो ये सब आपस में इंटरलेट करते हैं। जहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स आर देयर, डक्स आर देयर, एंड वाटर में देखो प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, लोटस, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ things. So this is how you are having it. Now if we talk about, then here again ये जो है हीरा ने क्या explain किया। हीरा says not just camel, you visit in the desert, what you will find, snake, lizard, many things. वैसे ही जो है आपका रवि सोचता है कि what do animals and vegetation and the way people vary from different to मतलब इन प्लेसेस वो अलग अलग क्यों हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो है आपका टेम्परेचर का डिफरेंस है, आपका रेन का डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको जो हैं क्या करती हैं, इसमें वैरायटी क्रिएट करती हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में। नाउ फर्दर ऑन, if you look at it, then in the box, do you know there is one important day has been given, 5th June every year World Environment Day is celebrated to create an awareness regarding saving the environment.
Now all plants and animals being dependent on each other in their surrounding, दे आर इंटरडिपेंडेंसी ही उनके इकोसिस्टम को बनाती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग पर और नॉन लिविंग लिविंग पर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट मेक्स द इकोसिस्टम सो स्पेशल. जैसे डेजर्ट में और ग्रासलैंड के अंदर एनिमल्स भी अलग होंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप भी अलग होगा. नाउ देयर इज़ वन मोर डेफिनेशन इज़ गिवन, that is called the barter system. Well, this is glossary is given on the right hand side. This barter system means that we are exchanging goods in exchange of goods without currency, without coin. We are doing an exchange, we are doing this trading. जहाँ पर आप जैसे अगर आपके पास गेहूँ है और दूसरे किसी और के पास चावल है, आपको चावल चाहिए तो आप उसको गेहूँ देंगे, वो आपको चावल दे देगा. इफ़ आई ऐड ऑन ईयर, आपने देखा होगा आपके यहाँ पे स्क्रैप डीलर जिसको हम कबाड़ी वाला बोलते हैं वो आते हैं, तो वो कुछ फ्रूट्स रखे होते हैं या बर्तन रखे होते हैं, वो आपसे कबाड़ लेते हैं आपके घर का जो स्क्रैप होता है और उसकी वैल्यू करके वो आपको इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपको एक्सचेंज ऑफ गुड्स में गुड्स ही दे रहे हैं, यानी पैसा नहीं ले रहे हैं आप. तो ये एक तरह से इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. जनरली रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरह का बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज होता है, बट नाउ अ डेज इट इज़ गेटिंग लेसर, बट डेफिनेटली यू विल get something in exchange of goods. So this is how the barter system is working. ये ज़्यादातर तब प्रैक्टिस होता था जब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी नहीं हुआ था, बट स्टिल इट इज़ practiced. Well, next one is human environment. When we talk about the human environment, and in the human environment means हम इंसानों का interaction हमारी surrounding से. Then what do you say? Human being interact with the environment and modify it according to their needs. हमें ज़रूरत होती है, हम अपने एरिया को modify करते हैं. जैसे when you need a 2-room house, you buy a 2-room house, and sometimes we create the modification. हम अंदर घर के जो है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे एक 3rd room बन सकता है, we do the modification. हम घर में भी करते हैं, वैसे ही आप अपनी सराउंडिंग में भी करते हैं. जैसे पहले क्या होता था, घर घर में जो है वो टैप नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, कुएं पे पानी लेने जाना होता था या पौंड पे लेके जाते थे. अभी क्या है, टू फैसिलिटेट द पीपल, अब घर घर में जो है वो टैप वाटर है, तो नाउ दिस प्रैक्टिस इज रिड्यूस्ड. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ द मॉडिफिकेशन इन द सराउंडिंग फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल. इवन बहुत सारी जो है चीज़ें सिंपल लाइफ फुलफिल्ड विद द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर एंड अराउंड देम. अब जैसे जैसे नीड्स ग्रो करेंगी वो जो है उसको मॉडिफाई करेगा, एनवायरनमेंट को चेंज करेगा. जैसे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की जिसकी क्रॉप्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी उसको वो ग्रो करेगा. अगर उसको क्रॉप्स जो है वो इंडस्ट्री के लिए उगानी है तो वो फूड ग्रेन्स की जगह पे कैश क्रॉप्स को करेगा यूज़. जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी वजह से उसको इन्वेंट किया और ग्रेजुअली उसका यूज़ करके जो है वी डिड मैनी ऑफ द changes or we supported our life. For example, कॉमर्स का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. पहले पैकेज फूड नहीं होते थे, अब देखो आज के टाइम में तो आपको राजमा चावल भी पैकेज फूड में मिल जाता है. आप पैकेट लीजिए, घर पे जाइए, गर्म करिए और खा लीजिए. तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नीड्स. आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो दे यूज़ ऑल दीज थिंग्स. ट्रांसपोर्टेशन में देखो कितना चेंज आ गया है. पहले जो है आपका सिर्फ एनिमल्स पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, आज के टाइम में देखो बुलेट ट्रेन है आपके पास, मेट्रो है, एंड वेरी व्हीकल्स भी कितने सारे आ गए हैं आपके. तो हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर, हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? Perfect balance necessary between the natural environment. Human must learn to live within एनवायरमेंट हार्मोनियस वे. इट मीन्स कि आप देखो आपके सराउंडिंग में आपकी नीड्स के लिए इनफ है. ग्रीड के लिए तो कुछ भी काफ़ी नहीं होता, वो तो आपको ग्रीड है यानी लालच होगा तो सब कुछ कम है. लेकिन वी नीड टू फॉलो द नेचुरल टेंडेंसीज़. हमें अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए. जैसे अभी इसमें आपको बोला कि भैया विंटर में जो है गर्म चीज़ खाते हैं, समर्स में ठंडी खाते हैं, क्यों? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल है. तो ऐसे ही जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है वो इट इज़ बैलेंस्ड. सो वी शुड नॉट इंटरफेयर टू मच इन आवर एनवायरनमेंट.
जितना फॉरेस्ट कवर हमें चाहिए उतना दिया है, लेकिन अब हम उसको काट देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग कुछ और बना देते हैं, और फिर हमें लगता है कि फॉरेस्ट, फिर एनिमल्स हम पे अटैक कर रहे हैं, बट एक्चुअली एनिमल्स हम पे अटैक नहीं कर रहे होते। हम एनिमल्स के घर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो एनिमल कहाँ जाएगा, वो घूमेगा ना कहीं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दिस कॉन्सेप्ट, दैट वी शुड नॉट unnecessary interfere in the nature. So this is Noori, a girl from, this is girl Noori from Mizoram, from Ravi's class. Ravi, remember starting में आपके पास यही बच्चा जिसे अभी बात कर रहे हैं, ये बताती कि उसके वहाँ पे कितना ग्रीन है, इसकी वजह से जो है वो बहुत अपसेट हुआ, उसको इनवाइट किया कि तू मेरे स्टेट में आना वेकेशंस के लिए। तो दिस इज़ हाउ दे आर सपोर्टिंग ईच अदर्स फीलिंग्स। तो वहाँ पर जो है टीचर जो है उनको एक ड्राइंग का, लैंडस्केप का एक होमवर्क दे देते हैं, सो दैट दे वुड फील गुड एंड दे कैन understand what is the beauty of the nature. So this is all about your chapter. In this chapter you have seen the components of the environment and how the human activities are destroying it or doing a imbalance. For example, we are setting up industries, हम industries लगा रहे हैं लेकिन उसका जो भी डिस्चार्ज है वो रिवर्स में डालते हैं, रिवर्स हमारी पोल्यूट हो जाती हैं, फिर हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरने लग जाते हैं। तो इट इज़ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर विच इज़ क्रिएटिंग अ डेंजरस इम्पैक्ट ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग organism. Okay, thank you for watching, and do revise this chapter. Further more videos, do subscribe the channel, and see you in the next video. Thank you.